باقی جو ہمارے بدبودار مدعے ہیں یا جو ہمارا استغاثہ ہے اس پہ آتے ہیں، لیکن آج آپ کو بیماری کا شافی علاج بتاؤں گا اور ثبوت دے کر بتاؤں گا کہ بیماری اس طریقے سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اگر یقین ہو تو۔ یہ کہانی ہے جان ڈی راک فیلر۔ یہ اتنا بڑا آدمی تھا اور اس کی سٹینڈرڈ پیٹرولیم اتنی بڑی تھی کہ امریکہ کی سپریم کورٹ کو مداخلت کرنا پڑی اور اس کی اجارہ داری کو توڑنا پڑا، کیونکہ امریکہ کا 90% تیل یہ شخص صاف کرتا تھا، راک ڈی فیلر۔ اب یہ ٹھیک کیسے ہوا؟ جب ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے تو اس نے کیا علاج کیا کہ اس کی بیماری سے جان چھوٹ گئی۔ اگر آپ نے دلچسپی لی تو آپ بہت انجوائے کریں گے۔ جان ڈی راک فیلر 1839 میں پیدا ہوا۔ یہ کبھی دنیا کے امیر ترین آدمی تھے، دنیا کا پہلا ارب پتی، یہ پہلا ارب پتی تھا، اور کہتے ہیں کہ اس وقت اس کے پاس 364 ارب ڈالرز تھے۔ اس وقت اب کتنے ہوں گے یہ آپ خود اندازہ کر لیں۔ 25 سال کی عمر میں اس نے امریکہ کی سب سے بڑی آئل ریفائنریوں میں سے ایک کو کنٹرول کیا، دی سٹینڈرڈ پیٹرولیم۔ 31 سال کی عمر میں وہ دنیا کا سب سے بڑا تیل صاف کرنے والا شخص بن گیا پوری دنیا میں۔ 38 سال کی عمر میں اس نے امریکہ میں 90% تیل کو صاف کیا، 90%۔ 1950 سال تک وہ ملک کا سب سے امیر آدمی تھا۔ ایک نوجوان کے طور پر ہر فیصلہ، رویہ اور رشتہ اس کی ذاتی طاقت اور دولت پیدا کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ لیکن اب غور کرنا ہے، 53 سال کی عمر میں وہ بیمار ہو گیا۔ اس کا پورا جسم درد سے لرز گیا اور اس کے سارے بال جھڑ گئے۔ مکمل اذیت میں دنیا کا واحد ارب پتی اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی خرید سکتا تھا، لیکن وہ صرف سوپ اور دودھ ہضم کر سکتا تھا۔ ایک ساتھی نے لکھا، وہ سو نہیں سکتا تھا، مسکرا نہیں سکتا تھا اور زندگی میں کوئی بھی چیز اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ 364 ارب ڈالرز اس دور میں، اور سوپ اور دودھ، مسکرا نہ سکنا، بال جھڑ جانا۔ گوگل کر لیں، راک ڈی فیلر کو گوگل کر لیں، آپ لوگ تصویر بھی دیکھ لیں۔ جی، کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے ذاتی انتہائی ماہر ڈاکٹروں نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ 1 سال کے اندر مر جائے گا۔ 1 سال دیا انہوں نے۔ وہ سال اذیت سے آہستہ آہستہ گزر گیا۔ جب وہ موت کے قریب پہنچا تو وہ ایک صبح اس مبہم احساس کے ساتھ بیدار ہوا کہ وہ اپنی دولت میں سے کچھ بھی اپنے ساتھ اگلے جہان میں لے جانے کے قابل نہیں ہے۔ رات کو لیٹے ہوئے اسے خیال آیا، وہ آدمی جو کاری باری دنیا کو کنٹرول کر سکتا تھا، اچانک احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک انتخاب رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے اٹارنی، اکاؤنٹنٹ اور مینیجرز کو بلایا اور اعلان کیا کہ وہ اپنے اثاثوں کو ہسپتالوں، ریسرچ اور خیراتی کاموں میں منتقل کرنا چاہتا ہے۔ علاج سنیں، جان ڈی راک فیلر نے اپنی فاؤنڈیشن قائم کی۔ یہ نئی سمت بالآخر پینسلین کی دریافت کا باعث بنی۔ ملیریا، تپدق اور خوناک کا علاج دیکھیں، دنیا میں پینسلین کے تماشے دیکھیں، اینٹی بائیوٹک پھر بعد میں۔ لیکن شاید راک فیلر کی کہانی کا سب سے حیرت انگیز حصہ یہ ہے
کہ جس لمحے اس نے اپنی کمائی ہوئی تمام چیزوں کا ایک حصہ واپس دینا شروع کیا، اس کے جسم کی کیمسٹری میں اس قدر نمایاں تبدیلی آتی چلی گئی کہ وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت تھا کہ ایسا لگتا تھا وہ 53 سال کی عمر میں ہی مر جائے گا، لیکن وہ 98 سال کی عمر تک زندہ رہا۔ ڈاکٹرز آج تک جو اس کا کیس سٹڈی کرتے ہیں وہ حیران اور پریشان ہیں۔ مال خیرات کرنے سے وہ تندرست ہو گیا، گویا یہ خیرات نام کی چیز بھی ایک طریقہ علاج ہے۔ اسے بھی آزما کر دیکھ لیجئے آزما کر۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، سپریم انرجی نے مجھے سکھایا، سپریم انرجی، کہ سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے اور میں اس کی خواہشات کی تعمیل کرنے کے لیے صرف ایک ڈاکیہ ہوں، ایک چینل ہوں۔ میری زندگی ایک طویل خوشگوار چھٹی رہی، کام اور کھیل سے بھرپور۔ میں نے پریشانی کو راستے میں چھوڑ دیا، اب میں تھا اور میرا خدا تھا، میرے لیے ہر دن اچھا تھا اور میں 53 سال کی بجائے 98 سال تک زندہ رہا۔ دی اسٹینڈرڈ پیٹرولیم، راک ڈی فیلر۔ ضرور سٹڈی کریں اور پھر بتائیں کہ یہ کیسا علاج ہے بیماری کا، اور اپنے گھروں میں نظر بھی دوڑانی ہے۔ کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا کہ سید آیت اللہ خمینی، ان کے ایک دوست نے ان کو مٹن لا کے دیا کافی سارا، تو سید صاحب نے تھوڑا سا مٹن جو ہے نا اس میں لیا، تو وہ ساتھی بڑا حیران ہوا کہ میں بڑے شوق سے لایا تھا۔ تو آیت اللہ نے فرمایا کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، آپ کا خلوص بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے گھر میں فریج نہیں ہے۔ یہ ایران کا سب سے طاقتور شخص کہہ رہا تھا، جس نے 79 میں شاہ ایران کو دھول چٹائی، انقلاب لایا کہ میرے گھر میں فریج نہیں ہے، باقی خراب ہو جائے گا، جو میں نے لیا ہے وہ بھی پکائیں گے اور انجوائے کریں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے علاج کا، جو میں روزانہ آپ پہ زور دیتا رہتا ہوں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے۔ راک ڈی فیلر کو دیکھیں، پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں، اور ہمیں کیا کہتا ہے دین؟ صدقے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیوں آپ کو کہتا ہوں کہ غریبوں کے بھڑولوں میں دانے ڈالیں، قطرہ قطرہ اکٹھا کریں۔ بھرے ہوئے پیٹ کی جو دعا ہے نا، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 5 مئی 2026 کی تاریخ ہے اور دن ہے منگل کا۔ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں رکھنی ہیں، ایک ویلاگ بھی رکھنا ہے۔ پہلے آپ کو بیماری کا علاج بتایا، لیکن اس سے پہلے ایک درخواست ہے جو میں اکثر کرتا ہوں کہ جتنے بھی تھوڑے سے ویوز آتے ہیں نا، جو ویورز ہیں، جو محبت کرتے ہیں، سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور چینل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کیا کریں۔ چھیڑ چھاڑ سے مراد ہے لائک، اس کے علاوہ سبسکرائب، اس کے علاوہ شیئر۔ اس سے ہیلدی جو ہے نا وہ چینل پہ اثر پڑتا ہے۔ یوٹیوب کو میسج آتا ہے کہ جو ویڈیو ہے وہ تگڑی ہے، آپ پسند کر رہے ہیں، لہذا آپ کی انگیجمنٹ بڑھ رہی ہے اور آپ جو ہے وہ پوری دیکھ رہے ہیں۔ اب راک ڈی فیلر کے بارے میں یا اس طریقہ علاج کے بارے میں آپ نے پہلے پڑھا تھا یا پہلے سنا تھا؟ ہاں، جو لوگ دینی تعلیمات سے واقف ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جو ہے نا وہ صدقہ کیا کچھ کرتا ہے اور کیسے معجزے کرتا ہے۔ تو آپ اسی پہ چلتے ہوئے جو ہے نا ہماری فنڈ ریزنگ میں بھی شرکت کریں اور چینل کو زندہ رکھنے کے لیے، میری آواز کو مضبوط کرنے کے لیے چینل کو فائنینشلی لازمی سپورٹ کریں۔ یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے تاکہ بے لاگ جو تبصرہ ہے، جو خبریں ہیں، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آتی رہیں۔ سب سے پہلی خبر جو
कशमकश काफी दिनों से जारी है मशरिक़ वस्ता में, और हम किसी न किसी तरीके से उससे मुतासिर हो रहे हैं। मसलन अब जो तेल की कीमत है वो $114 पर बैरल हो गई है। अमेरिका में तेल महंगा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में $400 पर लीटर चल रहा है, लेवी भी बहुत ज्यादा है। और अब बताया जा रहा है कि 2-3 दिनों तक हुकूमत इसमें मजीद जो है वो इजाफा करने जा रही है। बहरहाल अगर देखा जाए तो जो ईरान की पोजीशन है, चाहे वो सियासी हो, फौजी हो, अखलाकी हो, वो अमेरिका से बेहतर है। मेरशाइमर बहुत जबरदस्त, अगर उनका नाम मैंने ठीक लिया क्योंकि बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, अमेरिकन हैं मेरशाइमर। उन्होंने इलाज बताया है डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि वो अपनी हमाकत को और अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए, इससे पहले कि ईरान दूसरा वियतनाम बन जाए, आप अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें। और जो दुनिया की मार्केट्स कोलैप्स कर रही हैं, जो 5 करोड़ लोग मजीद दुनिया में खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं, उनको बचाएं। ये मेरशाइमर ने मशवरा दिया है अमेरिका को। उधर ताजा तरीन CNN के सर्वे के मुताबिक 61% लोग जो है वो इस जंग के खिलाफ हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप की जो है वो पॉलिसियों के खिलाफ हैं। और इसके अलावा लेकिन इसको जो ड्राइव कर रहा है वो आप जानते हैं कि वो शैतान है, वो नाजायज रियासत है, इजराइल है, वो इस जंग को ड्राइव कर रहा है। और कहा जा रहा है कि JD वैंस को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं इजराइल ने, मार्को रूबियो को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, पीट हेगसेथ जो वजीर दिफा हैं उनको बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। ये जंग रुकनी नहीं चाहिए। एक और ज़हनी मरीज है लिंडसे ग्रैहम, ये बड़ा करीब है डोनाल्ड ट्रंप के और सेनेटर है। ये ज़हनी मरीज भी इस बात पे जोर दे रहा है कि जंग जारी रहनी चाहिए। आपको पता होगा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में UAE के अल फजीरा जो उनका जखीरा है, लाखों टन तेल जहां पे जखीरा होता है वहां पे ड्रोन लगा है, कोई कहता है मिसाइल लगा है, तो वहां पे आग भड़क उठी है। सऊदी ने मजम्मत की है, पाकिस्तान ने मजम्मत की है, इसके अलावा कतर ने मजम्मत की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। UAE ने कहा है कि वो अपना हक जो है वो महफूज रखता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो UAE पाकिस्तानियों के साथ अच्छा सलूक जो है वो नहीं कर रहा और पाकिस्तानियों के साथ वो बुरा सलूक कर रहा है। इसकी मजम्मत होनी चाहिए थी कि हमारा इसमें क्या लेना देना है, लेकिन आपको पता है हमारी हुकूमत इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो इसको जो है इसकी मजम्मत कर सके। बहरहाल अबनाए हुर्मुज़ जो है वो कशीदगी का मरकज बना हुआ है। वहां पे अमेरिकन मौजूद हैं, वहां पे पासदारान इनकलाब मौजूद हैं, वहां पे बारूदी सुरंगें मौजूद है। बहरहाल हाथियों की लड़ाई में हमारे जैसे जो घास हैं वो कुचले जा रहे हैं। ये कुछ बैनुल अक़वामी जो है ना, मैंने आपको मेरशाइमर का मशवरा, बहुत जबरदस्त मशवरा है कि वो जो है खत्म कर दें, जिद खत्म कर दें, अना खत्म कर दें। एक तस्वीर पोस्ट की है डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी इस किस्म का टुच्चा बंदा, उसने तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में जो बाइडन घुटनों के बल बैठा है और बाराक हुसैन ओबामा वो सैयद अली खामेनेई के सामने थोड़ा सा सर को है खम किए हुए हैं, यानी एहतराम के लिए। जिस तरह यहाँ पे माइक पोम्पियो आया था वजीर खारजा अमेरिका का, तो उसने इमरान खान के सामने भी सर को खम दिया था और सर को झुकाया था। ये आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो उसने वो तस्वीर शेयर कर दी है कि जी ये देखें जी, बाइडन इस तरह करता था और बाराक ओबामा इस तरह करता था, और अपनी तस्वीर शेयर की है कि वो अकड़ के खड़ा है। ये दोनों डेमोक्रेट्स सदर थे जो है ना वो अमेरिका के। बहरहाल ट्रंप की ज़हनी हालत से आप जो है वो वाकिफ हैं। अमेरिकी जो वजीर दिफा पीट हेगसेथ ये एक और तनाज़े में आ गए हैं। तनाज़ा ये है कि उनकी फौज के साथ नहीं बन रही। आप जानते हैं आर्मी चीफ को वो बरतरफ कर चुके हैं, इसके अलावा नेवल सेक्रेटरी को वो बरतरफ कर चुके हैं, बहुत सारे आला फौजी अफसरान को वो बरतरफ कर चुके हैं। अब फौज ने इतराज किया है कि जो इजलास होते हैं पेंटागन में, तो पीट हेगसेथ उसमें अहलिया को ले आता है।
ये फौज का एतराज है। हालांकि वो खुद टुच्चा है, वो खुद लुच्चा है, मुसलमानों के खिलाफ है, जिस्म पे सारे टैटू बनवाए हुए हैं मुसलमानों के खिलाफ, और खुलेआम शराब पी के कहता है कि मुसलमानों को कत्ल करना सवाब है। एक वो नहीं संभाला जा रहा कि उसकी घरवाली भी उसी तरह टुच्ची होगी, वो उसको इजलासों में ले आता है। जो स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, ये बहरहाल पेंटागन ने जो है वो इतराज किया है पीट हेगसेथ पे, तो इनके जो सितारे हैं वो तकरीबन जो है वो गर्दिश में है। इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत बुरी खबर है। मैं तो हैरान हूं अपनी बहनों और भाइयों पे कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहरहाल वो कहते हैं हमने बहुत पुरानी इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारे अपार्टमेंट निकले हैं जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन 1 जो ट्विन टावर्स हैं उसमें वीडियोस भी आ गई हैं। 3 खवातीन की मैंने वीडियोस देखी हैं। वो कहती हैं कि हमने बुढ़ापे के सहारे के लिए ये सारा कुछ जो है ना अपनी मेहनत की कमाई से, बिल्कुल हमें कोई शक नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अपनी जो है ना पूरी लाइफ वो कुर्बान कर देते हैं, मुल्क से दूर होते हैं, अपनों से दूर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है। यानी एक खातून कह रही थी कि मेरा सबसे छोटा जो अपार्टमेंट है वो मेरा है, 1 कमरे का, लेकिन यहां पे ये इशू बन गया है। तो फिर पाकिस्तान में आपको पता है, यानी पाकिस्तान वो मुल्क है ना, मैं कारोबार करता हूं ना, मैं महमूद न्याजी या आप, जब आपका कारोबार चल पड़ता है, जबरदस्त चल पड़ता है, तो फिर आ जाते हैं, ये खुद ब खुद आ जाते हैं कि हमें, यानी यहां पे वजीर खजाना साहब का कहते हैं कि पाकिस्तान में कारोबार करना ना 36 या 26 यानी 36 या 26 शादियां करने के बराबर है। तो मेजबान पूछता है ये क्या बात हुई, तो वो कहता है कि 26 या 36 शादियां मैंने इसलिए कही हैं क्योंकि इतने महकमे हैं, सारे आ जाते हैं कि हमें कुछ दें, हमें कुछ दें। अब ये 110 या 120 कनाल बताई जा रही है, हुकूमत की नजर पड़ गई है, खासकर मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की। कह रहे हैं कि इसको दुबई टाइप पे बनाया जाएगा 120 कनाल को, 5 स्टार 7 स्टार होटल होंगे। नूरपुर शाहों को इसलिए गिराया गया, सैदपुर को इसलिए गिराया गया, बरी इमाम की, यहां पे जो है ना वो बिल्कुल दुबई बनेगा, शराब आम होगी क्योंकि उन होटलों में इजाजत है। अब ये ओवरसीज इनका क्या कसूर है। अब इजलास हुआ है कमेटी का, अभी भी ये खुशकिस्मत है, वो कमेटी कहती है कि जो ओरिजिनल पैसे थे ना, जिन ओरिजिनल, अब ओरिजिनल बोलें तो मैंने एक मकान लिया 10 साल पहले 5 लाख रुपए का, 10 साल पहले, अब तो वो बहुत महंगा होगा जिस तरह पाकिस्तान में महंगाई या इंडिया में या बांग्लादेश में। तो ये कह रहे हैं कि वो ओरिजिनल कीमत, वो जो मैंने 10 साल पहले 5 लाख का खरीदा था, तो वही देने के लिए हम तैयार हैं, ओरिजिनल कीमत। अब ओरिजिनल कीमत तो कुछ भी नहीं थी, जिन लोगों ने किस्तें भरी उनको पता होगा। तो ये कमेटी उन्होंने एक तजवीज, ये भी मेहरबानी है अगर देते हैं तो, अगर ये ओरिजिनल कीमत देते हैं तो मेरा ओवरसीज को मशवरा है कि वो ये भी ले लें। तो जिस तरह कहते हैं भागते चोर की लंगोटी से ही, और अब डांडे जा मिले हैं शरीफ खानदान से कि जी हमने आपके कहने पे ये सारा कुछ किया था। इसके मुताबिक जो है वो आपके सामने ओवरसीज का मैंने आपको बता दिया कि जो है ना वो इनकी अंतड़ियां घसीट लो, हवा की निजकारी कर दो। ये सुने, जो करना है एक ही बार कर गुजरो प्लीज, हो जाए जो कुछ होता है और जल्दी हो जाए। सालों का काम महीनों में, महीनों का दिनों में, दिनों का घंटों और घंटों का लम्हों में, लम्हों में। आखिरी और मुकम्मल तौर पर उड़िया रक्स दिखाओ, नंगा नाच नाचो टीवी पर और फारिग हो जाओ। आखिरी तरीन, बड़ा तरीन और कीमती तरीन प्लॉट अपने नाम कराओ और उसका प्लाजा बनाकर बेच दो, बल्कि पूरे का पूरा सूबा नीलाम कर दो।
पंजाब को हाउसिंग सोसाइटी बनाओ, सिंध को हाउसिंग सोसाइटी बनाओ, केपीके और बलोचिस्तान को हाउसिंग सोसाइटी बनाकर अपने और अपने जैसों में बांट दो। ये रिक्वेस्ट है जनरल आसिम मुनीर से कि जल्दी करें, प्लीज जल्दी करें। वो भी रॉक डी फेलर का बताया ना कि जी वो ना कुछ खा सके ना हंस सके, बाल झड़ गए। तो इस तरह ये हालत है कौम की। जल्दी करें, जल्दी, और फारिग हो जाओ। आखिरी कमीशन लो, आखिरी सौदा करो और चुपचाप सारे डॉलर, पौंड, मार्क या यन किसी बैरूनी बैंक में जमा करा के अपनी किसी ताजा तरीन जागीर में मुंतकिल हो जाओ। बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वैसे भी अमेरिकी पासपोर्टों का आजकल शोर है। हमें फारिग कर दो, खुद भी फारिग हो जाओ, आखिरी वार करो। भूखे नंगे अवाम की अंतड़ियां घसीट लो, अंतड़ियां बाहर निकालो, अंतड़ियां हाथ डाल के रस्सियों की तरह, और फारिग हो जाओ। आखिरी इंतकाम लो कि तुम लोग आए थे इधर 47 में, आखिरी इंतकाम लो। हवा की निजकारी करो और उसका ठेका भी किसी मल्टी नेशनल कंपनी को या अपने फ्रंटमैन को देकर उसमें अपना हिस्सा लो। हवा की निजकारी। कल परसों मैं, अब चलो उसको छोड़े, वो एक बहुत बड़े, हालांकि तजिया निगार ने कहा लेकिन मैं नहीं बोलता कि और क्या करो। आजाद मंडी की मैशत के नाम पर सूरज की किरणों के टेंडर तलब करो। कर रहे हैं ना सोलर पे, टेंडर तलब करो और हरारे का सर चश्मा भी किसी नूर चश्मी के सुपुर्द कर दो, किसी अपने नूर नजर के सुपुर्द कर दो। सूरज कश्मीर, और फारिग हो जाओ। कश्मीर का बयाना पकड़ लो, हम सांस बंद कर देंगे। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को स्क्रैप डिक्लेयर करके कोड़ियों के भाव कबाड़ियों के हवाले कर दो और फारिग हो जाओ। जुल्म की इंतहा कर दो। हाथी के पांव तले रुंदवाने और कोहलू में पलवाने की रस्म असर नो जिंदा करो कि हाथी का पांव सर पर रखा जाए, कोहलू में बैल की जगह पाकिस्तानी जकड़ दिया जाए। जो तुम्हें आंख उठाकर देखे उसकी आंखों में गरम सलाखें उसकी आंखों में भरवा दो। महमूद नियादी की सबसे पहले, जिनकी समात जिंदा हो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा दो। महमूद नियादी का पहले, जुबान बोलती हो उसे कटवा कर बद जुबानों के हाथों पर सजा दो या कुत्तों को खिला दो। महमूद नियादी की पहले, कहत बनकर फैल जाओ, सैलाब बनकर आ जाओ, अजाब बनकर छा जाओ। जो कुछ करना है एक ही बार कर गुजरो और फिर फारिग हो जाओ। ये जो तुम तिल तिल, बोटी बोटी, सांस सांस मार रहे हो, ये अमल बहुत भयानक है। और ये इसलिए भयानक है कि तुम्हारे इस अमल का रद्द अमल दिखाई नहीं दे रहा। ठाकुर ने हिजड़ों की फौज पाली है 25 करोड़। आकाओ इंतहा कर दो, मालको इंतहा कर दो, पीरो इंतहा कर दो, मुर्शदो इंतहा कर दो। जुल्म, इस्तेसाल, तशद्दुद, बेइंसाफी, करप्शन और लूट मार को उसकी मेराज तक पहुंचा दो। लोग मिसालें दें, लोग रोटी के एक लुक़मे, पानी के एक कतरे, इज्जत की एक नजर, तहफ्फुज की एक घड़ी को भी तरसने लगेंगे तो बात बनेगी। वरना जब तक ये उफ्तादगाने खाक जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखे हुए हैं, जब तक इनके सहरा लबों पर पानी की एक बूंद भी
टपक रही है, ये उम्मीद का दामन छोड़कर तुम्हारे दामन और गिरबान नहीं पकड़ेंगे। तुम्हारे दामन और गिरबान कब के, वरना तुम्हारे दामन और गिरबान कब के तार तार हो गए होते। इनमें गैरत होती तो तुम्हारे गिरबान उड़ते फिरते, जो तुम लोग कर चुके हो और कर रहे हो। या इलाही, वो कौन सी इंतहा होगी, कैसी तकलीफ और ईजा होगी, कैसी बेइज्जती और अजियत होगी, जिसके बाद अवामी रद्द अमल का आगाज होगा, अवामी इनकलाब का आगाज होगा। और क्या करें ये हमारे साथ, क्या करें, यानी बता देना कि क्या करें, कि जिस पर आप रद्द अमल देंगे, जिस पे आप जो है ना वो कंफर्ट जोन से निकलेंगे, जिससे गिरबान चाक चाक करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि 1,24,000 पैगंबर, कोई मुझे बता दे कि किसी ने यजीद की बैत की दावत दी हो, बल्कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उन्होंने एक दिन फिक्स किया, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई, कमरा बनाया, लॉक किया, वहां पे बैठ गया। एक दिन उन्होंने मुख्तस किया कि वो अल्लाह को याद करेंगे, हमदुसना करेंगे। वैसे भी उनकी आवाज सुन के सारे परिंदे इकट्ठे हो जाते थे, इतने खूबसूरत जो वो बोलते और पढ़ते थे। तो उन्होंने ताला लगवा लिया, बहुत ऊंची दीवारें। वो मुराकबे में बैठे थे कि दो बंदे आ गए। एक बंदे ने कहा कि हम दोनों ने मजदूरी की, इसने 8 आने की मजदूरी की, मैंने 1 रुपए की मजदूरी की। ये अब 8 आने वाला कहता है कि तुम 1 रुपया मुझे दे दो और 8 आने इसको दे दो, यानी 8 आने मुझे, यानी 8 आने वाला कहता है तुम रुपया मुझे दे दो और 8 आने तुम ले लो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा सोचा, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि वो इतनी ऊंची दीवारें, ताला लगा हुआ है, ये यानी वो सर इस तरह करके सोच रहे थे कि ये कहां से आ गए। जब नजर ऊपर की तो कोई नहीं था। फिर ऊपर से कहा गया कि दाऊद, हमने तुम्हें कंफर्ट जोन के लिए भेजा है, 4 दीवारी में बैठने के लिए भेजा है, मुराकबे करने के लिए भेजा। बाहर निकलो, तबलीग करो, रोको लोगों को, समझाओ लोगों को। तुम यहां बैठ के मुराकबे कर रहे हो। मैं खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह, तू फकत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। जिब्राइल को इब्लीस ने कहा था बाल जिब्राइल में या ज़र्ब कलीम में, कि किसने कहा तुम्हें यहां बैठो, बाहर निकलो। ये मुलवंडे इनके जुमे पे खुतबे सुने, ईद पे सुने, इसका इतने करोड़ सवाब, इसका इतने करोड़ सवाब। बिल्कुल नहीं, ना खुद करेंगे ना करने देंगे। हर जुमे पे तालीम देते, कौन बाहर निकल आती, लेकिन नहीं। अलीमा खान ने जिस तरह ये मैं सिलसिला शर्म दिलाने की, वो जो चश्मा ग्रुप है, हेयर स्टाइल ग्रुप है, क्लीन शेव ग्रुप है, तिरछी हुई दाढ़ी ग्रुप है, टाई कोट ग्रुप है, बेगैरत ग्रुप है, गद्दार ग्रुप है, उसको शर्म दिलाने की कोशिश की है अलीमा खान ने। बाद लोग कह रहे हैं कि ये विरासती सियासत है। लोग तो बहरहाल कुछ भी कहते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब इमरान खान वजीर आज़म थे तो आप इन 3 बहनों को जानते थे? विरासत तब होती ना, ये मिनिस्टर होती, किसी सूबे की वजीर आला होती। नवाज शरीफ का घर देखें, जरदारी का देखें, बेनजीर का देखें, भुट्टो का देखें। ये कौन सी विरासत है कि रोडों पे तकलीफें उठाना? इस गर्मी में अभी वो पहुंची हुई है नाकों पे, रोडों पे। म्यादी हैं, खान हैं, शेरमान खैल हैं, मियां वाली के हैं, 2-2 कौड़ी के हरामखोर और रिश्वतखोर पुलिस वाले उनको धक्के मारते हैं।
उनके साथ बदजुबानी करते हैं। और ये क्यादत इसने जर्नैलों को कहा है कि अगर हम अच्छे बच्चे बन के, आप चाहते हैं कि हम अच्छे बच्चे बन कर रहे हैं, तो बहनों से न मिलवाएं। बहनों से, अगर बहनों से मुलाकात हो गई तो सबसे पहला हुक्म जो डयाला से आएगा ना, सबसे पहला हुक्म वो इस्तीफों का आएगा कि इस्तीफे दे दे। पहला हुक्म ये आएगा। फिर हम क्या करेंगे? फिर वो तकरीरें, महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर 1 सीट, इलामा राजा नासिर बाज अपोजिशन लीडर 1 सीट। आप कभी अपोजिशन लीडर का ऑफिस जाकर देखें, असेंबली में कभी गाड़ी देखें उसकी। 16 बंदों का स्टाफ मिलता है, 16 बंदों का अपोजिशन लीडर को। अचकज़ई को घर में मेरा ख्याल है शायद दूसरी दफा सालन मिल जाए तो बुजुर्ग हैं, या इलामा राजा नासिर बाज को 2 चमचियां मिल जाती हूं, बुजुर्ग हैं, अपोजिशन लीडर है। पहले बड़े इनकलाबी थे, पहले थे। फिर इनको पीटीआई के लोगों ने कहा कि खुदा ने बंदे मौत बयान करो, तो आपको के हमें देखो। हमें सारे पीटीआई के वर्कर्स बगैरत कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, खुसरा कहते हैं, गद्दार कहते हैं। नहीं कहते हो? हमारी क्या जान में फर्क पड़ता है। आज वो पेशावर स्टेडियम में नाच गाना हो रहा है कि पीएसएल जीत गए, या कोई जश्न है बहरहाल उधर स्टेडियम में। कल भी आपको बहुत कम लोगों ने वीलॉग देखा है, पीएसएल और रेत के जहाज, कल भी आपको बताया था, उधर तमाशा हो रहा है। उन्होंने इमरान खान स्टेडियम नाम भी जो है ना क्रिकेट स्टेडियम, यानी इमरान खान का नाम आता है तो जर्नैलों की जो बवासीर है वो पटाखे मारने लगती है कि नाम आ गया इमरान खान का, बवासीर वाले छल्ले। तो अलीमा खान ने कहा है कोई आम बंदा ना आए, सेंटर्स आए, एमएनएज आए, एमपीएज आए, टिकट होल्डर्स आए। ये दगड़ दल्ले, एक होता है दल्ला, एक होता है दड़ दल्ला, एक होता है दगड़ दल्ला। ये दगड़ दल्ले ये जुमान पार्क के बाहर नीचे बैठे होते, नीचे बैठे होते थे। मैं चश्मदीद गवाह हूं, नीचे टिकटों के लिए। एक अरबपति अपनी गाड़ी में सो रहा था, इतना मुंह खोला हुआ और सांड की तरह वो ले रहा था खराटे, गाड़ी में सोया हुआ था। खान साहब अंदर थे। ये दुनिया है भाई, अरबपति। आम ये दस्ती ते शेरू लकी वाला और ये सोहेला, ये तो किसी गिनती में ही नहीं है ना, ये तो किसी गिनती में ही नहीं है। नीचे दरिया भी नहीं है, बिल्कुल नीचे बैठे हैं। टिकट क्योंकि उन्हें पता था कि ये टिकट नहीं है, ये सीट है। खान का आपको पता है, जो मर्जी है कहें, खान मुझे टिकट दे दे मैं जीत जाऊंगा, मेरे पास पोस्टर छुपाने के पैसे नहीं है, मैं जीत जाऊंगा। बहरहाल उसने, अलीमा खान ने, कि तुम लोग शलवारें पहनते हो, नाड़े बांधते हो, ठीक है, वॉशरूम में जाते हो, फिर खुश होते हो कि असद तो मरो दो, असद तो मरो दो। लाख लानत है तुम्हारी मर्दानगी पे, बगैर तो मरो दो। आसा वही वॉशरूम में जाकर देखा करो क्या मर्द है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बी करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का, बल्कि सॉरी बाबा जी, चाचा जी, सॉरी, मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।